Hello, this is Nitish Pandey. First of all, today we will be talking about polynomials. After that, we will be solving exercise 2.1 and 2.2. So, आप लोग को प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल, हाउ टू डील विथ डिग्रीज, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स. सो एक बार आप लोग को फिर से हम बताना चाहेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है. ओके, सो पोलिनोमियल्स any expression or equation written in mathematical terms having constant and variable. आप लोग को बता चुके हैं constant and variable. A quantity which doesn't change the value are called constant. A quantity which changes the value is called variable. वैसे क्वांटिटी जिसका हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. वैसा वैल्यू जिसका हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. आप लोग को बता चुके हैं. एंड पोलिनोमियल्स हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड सेकेंड इज इक्वेशन. बट आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट एल्जेब्रिक इक्वेशन ने बताए. ओके, सो पोलिनोमियल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. पोलिनोमियल्स हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड सेकेंड इज इक्वेशन. तो आप लोग को हम कल बता चुके हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द साइन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक इक्वेशन आई विल टेल दैट. ओके, सी व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. An expression having the combination of variable and constant with the sign of mathematical operation that is called algebraic expression. Algebraic expression we can write anything. Say for example 5x 10x plus 9 root 3y plus 10 root 5x plus y plus 10 and root 3x. Anything we can write anything algebraic expression. So these all things are called algebraic expression. 5x 10x plus 9 root 3y plus 10 root 5x plus y plus 10 and root 3x. all things are called algebraic expression. Okay, now what is algebraic equation? Here 5x 10x plus 9 2x minus 9 root 5x plus y plus 10. These all things will be also called algebraic equation. Say for example 2x minus 9 equal to 0. Whenever we see equal to sign in any of the mathematical expression, this will change to equation. मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि 2x माइनस 9 मीन्स इक्वल टू 0 नहीं होता. और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि 2x माइनस 9 इक्वल टू 0. सो 5x प्लस 10 दिस इज एल्जेब्रिक expression and 5x plus 10 equal to 0. This is algebraic equation. Means whenever we see equal to sign, whenever we see equal to sign in mathematical operation, mathematical term, this will be changed to equation. मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
हम अगर इक्वल टू का साइन यूज कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, पोलिनोमियल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड p of x, p of y, p of z, p of t, मीन्स इसको बोलेंगे हम p of x, p of y, p of z, p of t, मीन्स polynomials which can be represented px, py, pz, pt, means p of x, p of z, p of y, p of z, p of t, means आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि if we have algebraic expression 2x plus 5 and x equal to 2, so find the zeros। तो zeros find करने के लिए क्या करते थे हम कि px को क्या करते थे हम, px equal to given 2x plus 5, so this is the algebraic expression 2x plus 5। तो हम px को फाइंड करने के लिए क्या करते थे, px का वैल्यू कितना दिया, x का वैल्यू 5, so we have to put value of 5 here, so p5, so 2 into 5 plus 5 equal to 5 2 is 10 plus 5 equal to 15। if py equal to y square plus 6, so when x equal to 3, so we have to put the value of y, p of y equal to y square plus 6, so p of 3 square plus 6, and we know that 3 square equal to 9 plus 6 equal to 15। सो आप लोग 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, वो जीरो होता है, मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है, जीरोस फाइंड होता है। तो पोलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, p ऑफ t, कुछ भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 1 इज the graph of y equal to p of x are given below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case। मीन्स हम आप लोग को एक नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स p of x, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को हम किसी डिनोट करते हैं p of x, आर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ of y equal to p of x intersect the x axis। मीन्स जो y equal to है, मीन्स जो p of x है, x मीन्स x को कहाँ कहाँ पे वो कट कर रहा है, जो ग्राफ है वो x को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। इफ यहाँ पे अगर इस तरह लिखा रहता द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल py, यहाँ पे रहता py आर y कोऑर्डिनेट of the point where the graph of x equal to py intersect the y axis, तो हम देखते हैं कि y axis को ग्राफ कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px का बात कर रहा है, तो जहां पे px का बात करेगा तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे py का बात करता और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के जगह पे y कोऑर्डिनेट रहता तो हम क्या देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो द ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x does not intersect the x axis at any point। जो ग्राफ है p of x का, ये जो p of x है y इक्वल टू p of x, जो ग्राफ है वो कहीं भी x एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है क्या, नहीं कट रहा है। किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को। तो ये क्या होगा, hence therefore the number of zeros is 0 as the graph does not intersect the x axis at any point। अगर यहीं पे ये रहता आपका, सपोज कीजिए ये ग्राफ रहता इस टाइप का रहता, तो द ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x intersect the x axis this point, first is this point, second is this point, and third is this point, intersect the x axis at 3 points, so 0 is equal to 3।
अगर यहाँ पे इस तरह का रहता, इस तरह का ग्राफ रहता, तो यहाँ पे दिस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, पंचवा पॉइंट यहाँ पे। तो y p ऑफ x इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 5, मीन्स जितना x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर px का बात करेगा, तो अगर बुक में यहाँ पे अभी अगर px का क्वेश्चन नहीं दिया हो, यहाँ पे दिया हो p ऑफ y, तो हम देखेंगे कि y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, p ऑफ x, तो हम देखेंगे कि x एक्सिस में कहाँ पे ग्राफ जो है वो कट कर रहा है। ओके, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 इज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x intersect the x-axis at only one point. So the number of zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at only one point. That's why p of x equal to 1. Means number of zeros equal to 1. Again, question number 3, the graph y equal to p of x intersect the x-axis at 3 points. First is here, second is here, and third is here. First, second, and third. 1, 2, and 3. So the number of zeros is 3 as the graph intersect the x-axis at 3 points. Okay. Now question number 4. The graph y equal to p of x intersect the x-axis first point and other is second point. दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। मीन्स ये एक्स एक्सिस को आपको टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका 2। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट, this one is second, this one is third, and this one is fourth. So number of zeros equal to 4. Again means px equal to number of zeros equal to 4. Now question number 6. First point, second point, and third point. The number of zeros equal to 3 as the graph intersect the x-axis at 3 points. Okay.